Jai Hind and welcome to another class. So, आज की class is going to revolve around a very interesting topic that is definitely associated with our day-to-day life. It is nothing but describing people and places in detail. So जब भी हम बात करते हैं, we are interacting, we are talking, या तो हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जनरली, या किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं. बात तो हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में भी करते हैं या कभी सिचुएशंस के बारे में भी करते हैं. तो ग्रेजुअली इन सब पे मूव ऑन करेंगे, लेकिन आज मेजर फोकस रहेगा हाउ टू डिस्क्राइब people and places in detail with better and enriched vocabulary. So let's have the overview of the lesson कि हमने आज lesson में क्या क्या देखना है, क्या क्या एक साथ समझना है. So when I was deciding this lesson for you, so while designing I had a goal in mind that I would want you by the end of the lesson कि आपकी जो किसी चीज़ को describe करने की descriptive vocabulary है, जो words हैं, उसको definitely मैं पहले से better कर सकूं, enhance कर सकूं, so that you can easily create complex sentences with very clear or vivid description of people and places. Then another focus while doing up this lecture for you was that I wanted कि जो descriptive आपकी vocabulary है उसमें मैं और क्या add कर सकूं आपके लिए. I could bring across some very important and very nicely sounding phrases like which are called the descriptive phrases. Then some words which add lot of charm to a sentence which are called our adjectives. So ऐसे words use कर सकते हैं अपनी vocabulary में to describe people and places which are our adjectives which add a special touch to a boring sentence. Then also I wanted to bring across the right way of structuring a sentence which will make it sound more interesting and engaging to the listener. So all this, why all this? Why so much of effort has gone in planning what has to come in today's class? Because ultimately my aim is to enhance your conversational abilities. That after this class, जो आपकी conversation करने की ability है, that has become better whether you are in a social setup with your friends and family and acquaintances or you are in a professional setting at work where you have to describe various situations and people and places as per the need, as per the requirement. So let's move on to the introduction. Why do we need to describe? Why do we need to talk about different things? See, our conversations basically are nothing but usually when we are talking, we are either asking something or we are telling something. So generally it is that we want to tell something to others, that is when हम लोग conversations को continue करते हैं. So जब भी आप किसी जगह के बारे में किसी से बात करते हैं, you want to talk about a place, कैसे बात करेंगे? You should be able to describe that place. उसके बारे में कुछ तो बताएंगे. आप छुट्टी मनाने अगर मॉरिशस गए तो आप मॉरिशस के बारे में कुछ तो बताएंगे कि वो जगह कैसी है, कैसी नहीं है. तो उसको कैसे डिस्क्राइब करें, किस तरह का आप वोकैबुलरी यूज़ करें. अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस किसी को बताने हैं या किसी फ्रेंड या कलीग के बारे में एक दूसरे को बताना है जो उनसे कभी नहीं मिले, उन्हें कैसे डिस्क्राइब करेंगे इफेक्टिवली. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. बातचीत करनी तब इंटरेस्टिंग होती है किसी भी व्यक्ति के साथ जब वो अपनी बात को तर्क के साथ और क्लैरिटी के साथ he can put it across. So it is very, very mandatory for us, absolutely important that with effective descriptions we can put across things to the listeners. Now let's have some examples कि why descriptive vocabulary and descriptive phrases play an important role. Now अगर आप एक किसी social situation में हैं, just for an example with someone where you have to talk about your friend. See, someone is asking me about one of my friends. कैसे मैं उसके बारे में बात करूँगी? I should have some words, some adjectives, some phrases in place to describe about my friend क्योंकि मेरे दोस्त से तो ये इंसान पहले कभी मिले ही नहीं हैं. वो उससे first time मेरे बोले हुए sentences के थ्रू ही मिलेंगे. तो I should be able to paint a picture कि अच्छा ये इंसान जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, he is like this या she is like that. So proper description होना is very important. It makes your conversations engaging.
All right, then we move on to the travel scenarios. आजकल बहुत ही आसान हो गया है ट्रैवल करना, है ना? एक कॉल पर कैब आ जाती है, दूसरे कॉल पर फ्लाइट बुक हो जाती है, तीसरी कॉल पर रेलवे रिजर्वेशन हो जाती है, बस भी आजकल एक क्लिक दूर ही है ना? सीट फटाक से रिजर्व हो जाती है। तो जब भी हम इतना ज़्यादा आजकल सब ट्रैवल करने लगे हैं, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ट्रैवल के बारे में अगर हमसे कोई पूछे कि आज का आपका ट्रैवल कैसा था, या आप फलां-फलां या किसी और जगह गए, वहाँ की आपकी विज़िट कैसी थी? तो आप क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, इट वाज़ वेरी गुड, दैट्स इट। पर अगर कोई पूछेगा व्हाट ऑल यू डिड देयर, आपने वहाँ सब क्या किया? हाउ वुड यू से? उसके लिए भी तो कुछ अच्छे वोकैब्युलरी, एडजेक्टिव्स या डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स की ज़रूरत है। सो डेफिनिटली ये चीज़ें सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप अपनी कॉन्वर्सेशन स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। सिर्फ ये आम बातचीत के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेशनल सेटअप में भी किसी को डिस्क्राइब कर पाना सही तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। से सपोज यू आर सिटिंग फॉर टेकिंग एन इंटरव्यू, आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं एंड उस कैंडिडेट के बारे में आपने कुछ गेज किया और आप अपने सीनियर्स को बताना चाहते हैं, तो या अपने कलीग्स को बताना चाहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो उनके यूसेज से आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और पॉलिश लग सकते हैं। बात करने के या तो दो तरीके होते हैं, या तो बिल्कुल क्रूड, है ना? और या होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड। तो हमने इस लेवल पर सोफिस्टिकेशन की ओर बढ़ना है। सो दिस लर्निंग ऑल दिस हियर बिकम्स इम्पॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फॉर अस। सो नाउ वी मूव ऑन एट लेंथ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इसको क्यों सीखना चाहिए। आइए अब इसको सीखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिलेज। नाउ डिस्क्राइबिंग पीपल, जब भी हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप मुझे ही देखते हैं तो सबसे पहले आप मेरी बाहरी रूपरेखा को देखेंगे कि मैं कैसे दिखती हूँ, राइट? सो इसके लिए हम कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं, विशेषण जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। सो कुछ एडजेक्टिव्स होंगे जो मुझे डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ करेंगे, चाहे वो मेरे कैसी मैं दिखती हूँ उसके लिए हो, या कैसा मेरा बिहेवियर या पर्सनालिटी है उसके लिए हो, क्या क्या मेरा चाल का स्टाइल है उसके लिए हो। तो कुछ स्पेशल वर्ड्स जो हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं, वो हम यूज़ करेंगे अगर हम किसी को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं इन अ बेटर एंड इन अ मोर रिफाइंड वे। तो आइए सबसे पहले वील हैव अ ग्लांस एट द फिजिकल अपीयरेंस, कि सबसे पहले जो व्यक्ति बाहर से कैसा दिख रहा है उसी के ऊपर हम सीखते हैं क्या प्रॉपर एडजेक्टिव्स हो सकते हैं टू टॉक अबाउट। सबसे पहले वी कैन से अबाउट द बेसिक, जिसको देख करके स्ट्रक्चर को बॉडी के जो हम यूजुअली एडजेक्टिव्स यूज करते हैं वो होता है टॉल, बहुत लंबे हैं, शॉर्ट, बहुत ऊंची हाइट या कद के नहीं है, स्लेंडर, पतले हैं, मस्कुलर, अच्छा गठा हुआ शरीर है, या चबी, थोड़े भारी हैं, राइट? या प्लस साइज के हैं, टू बी मोर पॉलिश्ड। देन और हम क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं इवन बेटर वोकैबुलरी के लिए? हम यूज कर सकते हैं ओ ही इज गॉट अ स्ट्राइकिंग पर्सनैलिटी। स्ट्राइकिंग यानी ऐसी जो जल्दी ना भूले। देन द नेक्स्ट वन इज रेडियंट। रेडियंट इज ब्यूटिफुल। तो किसी लेडी के लिए आप बोल सकते हो शी वॉज सो रेडियंट, शी लुक्ड लवली एंड रेडियंट। देन नेक्स्ट इज एथलेटिक। एथलेटिक यानी एकदम बढ़िया पतला दुबला स्वस्थ शरीर, एथलेटिक बॉडी, जैसे कि किसी स्पोर्ट्समैन की होती है। देन इज रग्ड। सो दीज आर द डिफरेंट adjectives to start off when you are using them in describing people. This is where you start off with. Okay, start incorporating these when you are trying to describe somebody. All right, कि वो फिजिकली कैसे दिखते हैं। देन फिजिकल अपीयरेंस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है और जो हमें बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, दैट इज़ द पर्सनैलिटी ट्रेट। पर्सनैलिटी क्या होती है? हमारा व्यक्तित्व। अब हर इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट्स अलग अलग होते हैं। सो सबसे पहले हम लेते हैं पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। वो क्या होते हैं? जो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जिन लोगों पे पड़ता है, उनको दर्शाने के लिए क्या क्या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं? फ्रेंडली, outgoing,
एम्पथेटिक, एम्पथेटिक क्या होता है? एम्पथेटिक होता है वो लोग जो दूसरे की फीलिंग को समझते हैं. ओ, इट वॉज लवली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद हर, शी वॉज सो एम्पथेटिक दैट आई कुड जस्ट स्पीक फॉर आवर्स विद हर. एम्पथेटिक. विटी, विटी वो लोग होते हैं जो फुल ऑफ ह्यूमर होते हैं, जो हर बात को एक डिफरेंट डायमेंशन में ले जाते हैं. ठीक है. देन रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल यानी वो लोग जो हर चीज़ को करने का एक तरीका निकाल लेते हैं, जिनकी जान पहचान बहुत ज़्यादा होती है. सो वी कैन से इट वॉज वंडरफुल टू हैव हर इन द टीम. शी वॉज सो रिसोर्सफुल दैट शी मेड एवरीथिंग लुक सो ईजी. देन कुछ होते हैं नॉट सो गुड पर्सनैलिटी ट्रेट्स, या कुछ ऐसे ट्रेट्स जो थोड़े से नेगेटिव होते हैं हर इंसान में. हम तो एक अमालगमेशन है ना नेगेटिव और पॉजिटिव का. तो आप किसी की कोई चीज़ अगर आपको नहीं पसंद आ रही है ना, तो उसको आप किन वर्ड्स में, किन एडजेक्टिव्स में बोल सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. नेगेटिव एडजेक्टिव्स, जो फर्स्ट वन ऑन माय लिस्ट इज एरोगेंट. एरोगेंट क्या होता है? अक्कड़ वाला. She is very arrogant. She always has a chip on her shoulder. बहुत अकड़ है, हमेशा अकड़े हुए रहते हैं. So you can use the word arrogant. अलूफ, अलूफ यानी अलग थलग रहना. So कुछ लोगों को बहुत मिंगल करना अच्छा नहीं लगता. They like to stay all by themselves. Then this word can be used for them. Stingy. Stingy is a word जो हम use करते हैं उन लोगों के लिए who do not like to spend too much money. जिन्हें पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता, उनके लिए we can use a small word, stingy. Impulsive. Impulsive वो लोग होते हैं जो बहुत जल्दी किसी भी बात पे react कर देते हैं. Her impulsive behavior left her all by herself. Then the next word on the list is moody. Moody यानी अपने मन का मालिक. कभी मन किया तो बहुत खुश, नहीं किया तो बिना मतलब के upset. So very moody. It all depends on her mood. She's really moody about things. मैं यहाँ पे बड़े ही simple sentences ले रही हूँ to begin with because अभी we have not reached the complex sentence structures. Then we move on to some more methodical, introverted and charismatic. Introverted लोग वो होते हैं जो किसी से बातचीत करने में खुलने के लिए they take time. ओके बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में. Some people are really friendly, they open up very quick. They are called extroverts. ठीक है. एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो फटाफट बातचीत में किसी के भी साथ बिना झिझक के कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं. इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो दुनिया को परखने के लिए टाइम लेते हैं और बहुत जल्दी किसी से भी ओपन अप नहीं होते. देन इज द नेक्स्ट वर्ड करिस्मेटिक. करिस्मेटिक यानी चुंबकीय. ओह व्हाट अ पर्सनालिटी he has, so charismatic, जिसमें बहुत आकर्षण हो, दैट इज charismatic. सो इनमें से किसी भी एडजेक्टिव का यूज करके आप फिजिकल अपीयरेंस एज वेल एज पर्सनालिटी ट्रेट किसी का जब आप बात कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं. देन वी मूव ऑन क्लोथिंग एंड स्टाइल. सो कपड़े पहनने के अलग अलग स्टाइल होते हैं. सम पीपल लाइक टू वेयर मोर कैजुअल वेयर. कैजुअल वेयर क्या होता है? वो अटायर्स जो हम प्रोफेशनल या फॉर्मल एनवायरनमेंट्स में जनरली नहीं पहनते हैं ना. दे आर मोर रिलैक्स्ड. सो कैजुअल क्लोथिंग के लिए वी कैन यूज रिलैक्स्ड, स्पोर्टी, जैसे टी शर्ट हुआ, लोअर हुआ, है ना, वेरी स्पोर्टी आउटफिट. देन वी कैन ऑल्सो यूज लेड बैक, राइट. सो इस तरह के एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द क्लोथिंग. हर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग वाज प्रीटी लेड बैक. इट मीन्स उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे? शी वॉज वेयरिंग वेरी कैजुअल क्लोथ्स. इट वॉज वेरी लेड बैक. देन फॉर्मल जो एडजेक्टिव्स हैं, जो फॉर्मल वेयर के लिए हम यूज करते हैं, इट इज एलिगेंट. The sari made her look beautiful and elegant, right? Then we move on to chic. Chic. The new hairstyle made her look very, very chic. Chic. Please try and speak these with me. Sophisticated. Sophisticated. She always carried an air of sophistication wherever she went. Sophisticated, yani high class. All right, we move on now
to something which you can use even for a style to describe the style of a person which is unique. है ना, किसी का कोई स्टाइल होता है जो दुनिया से बहुत ही हटके होता है, इट्स वेरी वेरी यूनिक. सो आप क्या बोल सकते हैं, एक्लेक्टिक. एक्लेक्टिक, समथिंग वेरी वेरी रेयर, जो कॉमन है ही नहीं, जो जनरली हमने देखा ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड एक्लेक्टिक. वेरी डिफरेंट. ओके, देन क्वर्की. क्वर्की, आजकल क्वर्की ज्वेलरी का बहुत फैशन है, समथिंग विच इज आउट ऑफ द बॉक्स, नॉट यूजुअली सीन, है ना, बहुत ही फंकी, है ना, दैट्स कॉल्ड क्वर्की. देन विंटेज इंस्पायर्ड, बिल्कुल क्वर्की का ऑपोजिट होता है विंटेज इंस्पायर्ड. विंटेज यानी एरा गॉन बैक, विक्टोरियन एरा. सो जो गए ज़माने का चीज़ें हैं, विक्टोरियन एरा की चीज़ें हैं, लोगों को बहुत पसंद हैं आजकल भी. सो द हाउस इज़ फुल ऑफ विक्टोरियन इंस्पायर्ड फर्नीचर और विंटेज इंस्पायर्ड फर्नीचर, जो बहुत पुराना स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है या पुराना स्टाइल ऑफ फर्नीचर है, उनके लिए जनरली व्हेन वी हैव टू डिस्क्राइब इवन क्लोथिंग स्टाइल, हर क्लोथ्स वर वेरी विंटेज इंस्पायर्ड. उसने वैसे गाउन्स पहने हुए थे जैसे बॉल गाउन्स पहनती थी पहले क्वींस. सो इट वाज अ वेरी विंटेज स्टाइल ऑफ वेडिंग, विंटेज इंस्पायर्ड वेडिंग. ओके, कैसा स्टाइल था, विंटेज इंस्पायर्ड. ऑलराइट, किस एरा को बिलोंग कर रहा था. देन वी मूव ऑन टू नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड एग्जांपल्स विद एडजेक्टिव्स एंड क्लॉजेस. अब जो एडजेक्टिव्स हमने सीखे उनको मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. एंड नाउ हियर आई एम टेकिंग इट अ नॉच हायर. पहले ये वर्ड्स मैंने बहुत सिंपली यूज करके दिखाए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी doing slightly better level of complex structures of sentences together. She is a tall woman. How does she look? She looks tall. She's a tall woman with an air of confidence that makes her stand out in a crowd. वो एक लंबे कद की, ऊंचे कद की महिला हैं जिनमें कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा है और इस वजह से वो सबसे अलग दिखती हैं. वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से सबसे अलग दिखती हैं. व्हाट अ लवली सेंटेंस टू डिस्क्राइब समवन. किसी को बताने के बारे में, किसी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें उसकी फिजिकल लुक्स भी दी गई, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट भी दिया गया कि वो बहुत कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, और वो क्या करती है, उसका स्टाइल क्या है, वो बहुत अलग दिखती है, पूरे क्राउड में से अलग शाइन करती है. देन जैसे मैं बात कर रही थी कि अपने फ्रेंड के बारे में आपको बताना आना चाहिए, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है उसका. माय फ्रेंड इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज सीज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स. कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है किसी को डिस्क्राइब करने का. तो मैंने अपने फ्रेंड के बारे में क्या बताया कि मेरा फ्रेंड ऐसा है या मेरी सहेली ऐसी है जो हमेशा चीज़ों में पॉजिटिविटी ही देखती है. ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड पॉजिटिविटी. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किया गया है, बहुत अच्छे एडजेक्टिव्स को यूज़ करके. आप भी इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिए whenever you are trying to talk about your friends. It's really nice. देन अब मैं फिजिकल और पर्सनालिटी ट्रेट्स को अगर ज्वाइन करके किसी को बता रही हूँ, उसके एग्जाम्पल्स और देखते हैं. He is a lanky guy with a quick wit and a sarcastic sense of humor. वो लैंकी मतलब पतला दुबला. He is a lanky guy. गाय एक वर्ड है जो अमेरिकन इंग्लिश से इंस्पायर्ड है जनरली, और लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. He is a lanky guy with a quick wit, presence of mind and a sarcastic sense of humor. Sarcastic sense मतलब दूसरों की टांग खिंचाई करना. तो उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत प्लेजेंट नहीं है, वो दूसरों की टांग खिंचाई करता है. ओके, ही इज अ लैंकी गाय with a quick wit, with a great presence of mind and a sarcastic sense of humor. Then the next one, she is a petite woman. Petite matlab delicate, choti, petite. She is a petite woman with curly hair. उसके कैसे बाल हैं, फिजिकल ट्रेट दिखा रहे हैं. बॉडी कैसी है, पतली दुबली हैं, छोटी हैं, कर्ली हेयर है, एंड अ कंटेजियस लाफ. कंटेजियस लाफ मतलब उनकी हंसी ऐसी है कि देख के खुद भी आपको अच्छा लगे, आप भी हंस पड़े. दैट brightens up any room. She's got such a contagious laugh that she brightens up the whole room. जैसे उनके आने से पूरा रूम ही
मज़े से चकाचौंध से भर जाता है। शी इज़ सो ब्राइट, सो वाइब्रेंट। तो देखिए इन वर्ड्स को यूज़ करके एक सिंपल सेंटेंस को कि शी इज़ अ वंडरफुल वुमन, अगर मैं एक सिंपल सेंटेंस बनाऊँ उसकी जगह इफ़ आई यूज़ दीज वर्ड्स टू डिस्क्राइब हर द वे शी लुक्स, to describe her personality. See, I am adding so much value to my basic conversation skills. Then we now move on after doing people to places. अब हम different जगहों पर जाते हैं, different जगहों को experience करते हैं। कहीं हमारा experience बहुत अच्छा होता है, कहीं का experience not so good। तो उसके लिए क्या vocabulary होती है जो हम use कर सकते हैं? Let's see to describe a place. Now the vocabulary building starts with landscapes and cityscapes. Landscapes और cityscapes. Landscapes यानी areas like पहाड़ आपका या आपका open मैदान. So landscape. Cityscapes जो शहरों का area है वो कैसा है? That comes under cityscapes. So urban. Now urban वो area होता है जो शहरों में आता है. That's called your urban space. Okay, so urban space के लिए आप क्या करेंगे? जनरली आपने देखा है गांव के मुकाबले शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना? तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं bustling. Then vibrant. Vibrant का मतलब होता है colorful. Oh, the market was vibrant. Okay, then crowded. The market was buzzing with life. It had vibrant canopies and was crowded like crazy. कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वो ऐसी जगहें जहाँ पर दूसरे शहरों के लोग आकर के बसते हैं. जैसे आपकी जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पर दुनिया के हर कॉर्नर से लोग आके बसते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे. दीज आर ऑल कॉस्मोपॉलिटन एरियाज. ठीक है, सो कॉस्मोपॉलिटन. ओके, ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं अर्बन सेटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए. देन नेचुरल यानी आपके लैंडस्केप्स जो हैं उसके लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? सीरीन. प्लीज ट्राई एंड स्पीक दीज वर्ड्स व्हाट वी आर हैविंग ऑन द स्क्रीन सो दैट वी कैन वर्क not only with the vocabulary but also simultaneously with the pronunciation. So the first one, for a natural landscape you can use serene. Then lush. Lush green trees welcome you to the valley of flowers. Okay, rugged. Then wind swept. Beautiful a word and very nice word which you use generally, picturesque. Picturesque. It looked picturesque. नेक्स्ट, अब हम कहीं जाते हैं किसी भी जगह पर तो वहाँ पे कैसा एम्बियंस है, अंदर का माहौल कैसा है, दैट्स कॉल्ड एन एम्बियंस. एंड कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा होल वाइब ऑफ द प्लेस है, दैट्स कॉल्ड द एम्बियंस एंड द एटमॉस्फेयर. अगर आपने किसी जगह के वाइब के बारे में बात करनी है, कैसी वो फीलिंग देती है, आजकल वाइब एंड जाइब का ज़माना है, सो वो कैसी फीलिंग देती है, लेट्स सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स with that. The park was serene. The park was serene क्योंकि वो natural landscape है. With mild fragrance of flowers in the breeze. पार्क तो जहाँ था serene था, बड़ा ही शांत था, बड़ा ही सुंदर था और बड़ी हल्की हल्की भीनी भीनी फूलों की उसमें खुशबू आ रही थी हवा में. Now we move on to the next one. The cafe had a cozy, intimate atmosphere filled with the aroma of freshly brewed coffee. अगर मैं किसी कैफे में गई और उसके बारे में अपने फ्रेंड को बता रही हूँ, yesterday we had gone to this fantastic cafe. It was awesome a place to visit. So someone would ask me or she will ask me, अच्छा tell me more about it. तो मैं क्या बता सकती हूँ उसको? Instead of just finishing it in 2 lines, oh, the cookies were wonderful, the coffee was very nice. Instead of that, I can, show off my speaking skills and say, oh, the cafe had a cozy and intimate vibe to it or atmosphere. It was all filled with the aroma of freshly brewed coffee. और बढ़ाना है तो with freshly brewed coffee and lovely music playing. Or lovely instrumental music playing.
राइट? तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को इन्हांस कर सकते हैं, उसे बेटर बना सकते हैं और कॉन्वर्सेशन को एक क्या कहीं लेवल्स हाई ले जा सकते हैं। देन अब हम आते हैं, अगर हमें किसी जगह की, लोकेशन की डिस्क्रिप्शन किसी को देनी है तो क्या की फ्रेजेस होते हैं उसके लिए। लेट्स अटेंड टू सम नाउ। सी देयर इज प्लेंटी, सो वी विल ट्राई एंड अटेंड टू सम इन द सेशन। Nestled in a quiet valley. Nestled in a quiet valley, Fagu is surrounded by towering pine trees. अब मैं किसी एक हिल स्टेशन की बात कर रही हूँ जिसका नाम है फागू। ये टू बी प्रिसाइज शिमला, हिमाचल प्रदेश में, शिमला के थोड़ा आगे है। तो मैं उसके बारे में कैसे डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, कहाँ छुपा है वो? इट इज नेस्ल्ड इन अ क्वाइट वैली। All right. It's a serene place nestled in a quiet valley surrounded by towering pine trees. तो इस तरह से मैं वर्ड्स ऐड कर सकती हूँ और इस सेंटेंस को इस लेवल से भी हायर लेवल पर ले जा सकती हूँ, डिस्क्राइबिंग अ प्लेस। नेक्स्ट, एक बड़ा क्यूट एग्जाम्पल है। जब भी मैं किसी हिल स्टेशन में जाती हूँ, कहीं टी स्टेट में जाती हूँ, तो वहाँ जो बंगलोज होते हैं उनको देख करके एक ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर वी कैन एसोसिएट विद। दैट कैन बी द बंगलो इज पर्च्ड ऑन अ हिल। कहाँ बना है? इट इज मेड ऑन अ हिल। द बंगलो इज पर्च्ड ऑन अ हिल ऑफरिंग अ पैरानॉमिक व्यू ऑफ द सिटी बिलो। पैनोरामिक व्यू क्या होता है? अब आपके कैमराज में भी होता है ये व्यू, है ना, जिससे आपको पूरे एरिया का पूरा व्यू मिल जाता है। तो पैनोरामिक व्यू। सो द बंगलो इज पर्च्ड ऑन अ हिल offering a panoramic view of the city below. Now we move on to sentence structures and examples. And अब हम बात करते हैं सेंसरी लैंग्वेज की। क्या है भाई सेंसरी लैंग्वेज? स्पोकन इंग्लिश से कहाँ पहुँच गए सेंसेस पे एंड ऑल ऑफ दैट। सो सेंसरी लैंग्वेज कुछ नहीं है। सेंसरी लैंग्वेज है जब हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करके कुछ एडजेक्टिव्स उनके लिए यूज़ करते हैं, तो वो होती है सेंसरी लैंग्वेज। जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी स्मेल करी तो उस परफ्यूम के बारे में बताने के लिए, सेंस ऑफ स्मेल को बताने के लिए कुछ एडजेक्टिव यूज़ होंगे। जैसे कोई चीज़ देखी और बड़ी भाई आँखों को, तो वो बताने के लिए कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स होंगे। कोई चीज़ बिल्कुल नहीं अपील करी आँखों को, तो सर्टेन वोकैबुलरी वुड सेट इन टू डिस्क्राइब दैट। सो दीज आर योर सेंसरी वर्ड्स और सेंसरी लैंग्वेज। सो सेंसरी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम अपनी 5 इंद्रियां या 5 सेंसेस से भी बहुत कुछ ग्रास्पिन करते हैं, और जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो सब जो हमने ग्रास्पिन किया होता है और अपने सुपर कंप्यूटर ब्रेन में डाला होता है, दैट कम्स आउट फॉर अ रिप्ले। सो लेट्स सी, एक ब्यूटीफुल सेंटेंस देख लेते हैं। सेंसरी आप देखेंगे लैंग्वेज का कितना अच्छा यूसेज है। फ्रॉम हियर वील टेक इट फर्दर। The seaside town was filled with salty scent of the ocean. The seaside town was filled with salty scent of the ocean. How nice. This is something like you're reading out of a Ruskin Bond book, है ना? The sound of the waves crashing and the feel of cool sand beneath your feet. तो इसमें उन्होंने बड़े ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया। पढ़ते ही समझ आ गया कि हम सी साइड किसी एक टाउन के बारे में बात करें, सी साइड किसी लोकेशन के बारे में बात करें। देखो कितनी विविडली, कितनी क्लियर तरीके से एक पिक्चर हमारी आंखों के सामने विद वर्ड्स ही पेंट हो गई, राइट? यही फायदा है करेक्ट एडजेक्टिव्स, करेक्ट सेंसरी लैंग्वेज यूज करने का। नाउ वी मूव ऑन टू क्रिएटिंग इमेजरी। जैसे ये सेंटेंस पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने वो जगह की पिक्चर क्लियर हो गई, आपकी भी हो गई होगी आई एम श्योर। तो ये लैंग्वेज ने क्या किया? इस लैंग्वेज ने एक सीन हमारी आंखों के आगे पेंट कर दिया। हमारी 5 सेंसेस ने आपकी 5 सेंसेस तक एक कन्वे कर दिया मैसेज बाय क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल इमेज। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। The narrow cobbled streets were lined with quaint little shops, their colorful awnings fluttering in the breeze.
तो ये दिखा रहा है वो मिडिवल एरा या उस एरा की गलियां गलियारे जहाँ पर स्ट्रीट्स वर कॉबल्ड और बिल्कुल छोटी छोटी दुकानें हैं और कलरफुल ऑनिंग्स है। ऑनिंग्स क्या होती हैं? कैनोपीज, है ना। हम घरों के ऊपर भी लगाते हैं आजकल ऑनिंग्स ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए, कैनोपीज बोलते हैं उनको। फ्लटरिंग इन द ब्रीज, तो वो कैनोपीज हवा से हिल रही हैं और क्या पिक्चर एक बढ़िया सी क्रिएट हो रही है ना। ऐसे लग रहा है कि वेनिस की गलियों में या आप किसी पुराने या किसी यूरोपियन टाउन की गलियों में घूम रहे हैं, है ना। तो इस तरह की एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है जब हम सेंसरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, क्योंकि अब हमारी आंखों में एक इमेज क्रिएट हो गई, हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गई ये वर्ड्स सुन के। Then we move on to another example, which is very nice. The majestic mountains stood tall, their snow-capped peaks glowing in the golden light of the dawn. Light of the dawn. तो जो डॉन की लाइट है, डॉन क्या होता है? जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ पे पड़ती हैं, जब सूरज की पहली किरणें बाहर निकलती हैं, उसे कहते हैं डॉन। तो वो जब माउंटेन्स पे पड़ रही हैं वो कैसे चमक रहा है, कितना बढ़िया डिस्क्रिप्शन प्रीवियस सेंटेंस में हमने देखा। अब हम मूव ऑन करते हैं कि इन एडजेक्टिव्स, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के साथ जब या डिस्क्रिप्टिव वोकैबुलरी के साथ जब हम बातचीत करनी शुरू करते हैं तो क्या ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ या गलती होने की गुंजाइश है? व्हाट आर द की एरियाज वेयर देयर कैन बी एरर्स एंड हाउ वी शुड अवॉइड देम? सो एरर नंबर 1 इज ओवर यूजिंग बेसिक एडजेक्टिव्स। जो बेसिक एडजेक्टिव्स हमने शुरू में कवर किए, अगर हमें उन्हें बहुत ज़्यादा किसी सेंटेंस में डाल दें, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दे आर लाइक ब्यूटिफुल वर्ड्स जो किसी सेंटेंस की ब्यूटी को इन्हांस करते हैं, उसको मोर वेटेज देते हैं, है ना। लेकिन अगर आप उसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ लाद देंगे तो इट विल बी वे टू मच, इट विल जस्ट किल द होल पर्पस ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स यूज़ कीजिए, केयरफुली कीजिए, स्पेयरिंगली कीजिए, किसी की भी इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि it sounds overbearing. So don't overuse the adjectives, use them in a balanced manner. So instead of saying nice, use words like pleasant. Better adjective use कीजिए, है ना। तो better synonyms use कीजिए, charming और gracious. Instead of using beautiful, you can always say she looks stunning, captivating, breathtaking. लेकिन ये सारे adjectives अगर आप एक ही sentence में डाल देंगे, she looks calming, stunning, captivating, it will kill the beauty of the sentence you are trying to deliver. So use them carefully, don't overuse them, and use better words or synonyms of the general vocabulary terms. Then we move on to repetitive sentence structures. लोग क्या करते हैं जनरली जब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं, या तो सारे सेंटेंसेस एकदम शॉर्ट सेंटेंसेस हो जाते हैं या सारे ही बहुत लंबे लेंथी हो जाते हैं. No, you have to have a balance. Somewhere your sentence should be a 5 letters word sentences. Somewhere it can even go extended. So there has to be a balance between the two. If you are making very, very long sentences, it'll be a difficult task for the other person to listen to you, क्योंकि क्या पहले बोला था उसका ट्रैक आउट करना मुश्किल है. लेकिन अगर हर सेंटेंस बहुत छोटा होगा तो जो आप मीनिंग इफेक्टिवली कन्वे करना चाहते हैं दैट विल नॉट बी catered to in a nice manner. So try strike a balance. और ये कैसे आएगा? ये आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि मुझे कौन से सेंटेंसेस को लंबा करना चाहिए, कहाँ एडिशनल एडजेक्टिव्स यूज करने चाहिए, कहाँ अवॉइड करने चाहिए. Then use metaphors or similes to create stronger impact. ये एक पर्सनल टिप है जो मैं हर टाइम यूज करती हूँ अपनी कॉन्वर्सेशंस को इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू. मेटाफोर्स और सिमिलीज का इस्तेमाल करिए. वो क्या होती हैं? जैसे देखते हैं एग्जाम्पल. Her smile was as warm as the morning sun. So as warm as the morning sun. ये क्या हुआ? ये एक सिमिली है. किसकी तरह है उसकी स्माइल? As warm as the morning sun. She sounds as sweet as the birds chirping. तो bird chirping क्या है? एक सिमिली है. दोनों में एक समानता दिखा रहा है. लेकिन ये इतना अच्छा string of words है, यूसेज है कि इसने सेंटेंस को बहुत ही
बेटर लेवल का सेंटेंस बना दिया है, अच्छे लेवल का सेंटेंस बना दिया है। सो मेटाफॉर्स और सिमिलीज का इस्तेमाल कीजिए सो दैट यू कैन कम अक्रॉस as better and a refined speaker now. I think it is time to take off. So stop hesitating and hiding away. Another example, let's see. The city was chaotic, symphony of sights and sound. The city was chaotic. There was so much chaos. बहुत हपड़ दबड़ थी, बहुत क्योस था, ठीक है, बहुत सारे आवाजें थी, साउंड्स थे, एंड इट वाज लाइक अ सिम्फनी। सिम्फनी क्या होती है? पीस ऑफ म्यूजिक, मतलब अनएंडिंग साउंड था, अनएंडिंग नॉइस थी उस सिटी में जहां इसमें बहुत क्योस था। सो बड़ा नेगेटिवली सिटी का पूरा ट्रेट उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन कितने अच्छे सिमिली के साथ। ओके, now we move on to the vocab galore or the word galore or vocabulary bank for us. And now these words, because आज का session पूरा ही description and descriptive words के ऊपर रहा है based, तो आज की जो vocabulary words हैं वो भी आपको further help करेंगे अपनी language को vivid यानी clear और engaging बनाने में। So let's see, मैंने words specially select किए हैं according to the topic. So first of all, describing people के लिए जो आप words use कर सकते हैं, let's have a look at those. The first one is charismatic. Charismatic हम लोगों ने ये पहले भी कवर किया है, जिसमें बहुत अधिक आकर्षण हो, ओके, चुंबकीय प्रतिभा जैसे हम कहते हैं, charismatic, having a magnetic charm or appeal that draws others in, किसी को अपनी तरफ खींचने वाला जो व्यक्तित्व होता है, that's called charismatic. So the simple example is his charismatic personality made him center of attraction at every gathering. Then the next one, gregarious. Gregarious. Gregarious का मतलब होता है, ये बड़ा अच्छा वर्ड है और ये एडवांस वोकैबुलरी का वर्ड है। Gregarious, sociable, जो बहुत इंसान सोशल हो, outgoing हो और fond of being around others, दूसरों को मिलना और दूसरे लोगों के साथ इंटरमिंगल करने वाले आदमी के लिए ये वर्ड यूज होता है। She is very gregarious and loves meeting new people. Next, meticulous. Meticulous यानी very hard working, pay lot of attention to detail. जो लोग अपना काम बहुत ध्यान से करते हैं, बहुत precisely और carefully करते हैं, उनके लिए भी हम ये word use करते हैं meticulous. He is a meticulous worker who never leaves a project unfinished. देखिए कितने अच्छे से vocabulary की ये words किसी की personality trait को describe कर रहे हैं और sentence को better sound करा रहे हैं. Next is stock. Stock. Someone who remains calm and doesn't show much emotion even in a difficult situation. कई बार ऐसी situations आती हैं जिसमें हमें ऐसा difficult situation है जिसमें हम break down कर जाते हैं, लेकिन कई लोग उसमें भी बड़े strongly खड़े रहते हैं, तो उनके लिए है stoic. Despite the bad news, she remained stoic and composed. She remained stoic and composed. मतलब वो दृढ़ रही और एकदम काम रही, टूटी नहीं. Next, flamboyant. Flamboyant. Flamboyant again advanced vocabulary का word हो सकता है, लेकिन हमारे पास भी इंटरमीडिएट लेवल पे डेफिनेटली अब यूसेज के लिए हम इसके रेडी हैं. फ्लैम्बॉयंट, बोल्ड, कोई जो बहुत बोल्ड हो इंसान, कलरफुल हो या उसकी अपीयरेंस ऐसी हो कि सारी अटेंशन अपनी तरफ खींच ले और उसका ऐसा बिहेवियर हो कि कोई उसको अननोटिस कर ही ना सके, है ना, ऐसे इंसान के लिए वी कैन यूज द वर्ड flamboyant. So his flamboyant fashion sense always turn heads wherever he goes. So उसकी जो fashion sense है, जो dressing style है, इतना flamboyant है, over the top है, इतना attention grabbing है कि वो unnoticed रहता ही नहीं, चाहे वो कहीं भी जाए. अब आते हैं vocabulary to describe places. ये आज के वर्ड्स हैं, इन्हें लर्न करिए, इनका यूसेज समझिए, हो सके तो इनके स्पेलिंग्स को भी सीखिए ताकि आप अपने रिटन में भी रिटन वर्क में भी इनको यूज कर सके. नेक्स्ट, व्हेन वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट प्लेसेस, द नेक्स्ट वन बस्लिंग, हमने पहले भी किया, समथिंग विच इज फुल ऑफ एनर्जी एंड एक्टिविटी. Often this is used to describe a lively
इन्वायरमेंट और अ प्लेस, जो प्लेस में बहुत एक्टिविटी है उसको डिस्क्राइब करने के लिए जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं. द बस्लिंग मार्केट प्लेस वॉज लाइव विद वाइब्रेंट कलर्स एंड अरोमाज ऑफ स्पाइसेस. तो जैसे आप मिडल ईस्ट में कहीं स्पाइस मार्केट में जा रहे हैं या कहाँ, कोची में ही लाइव अपने जाइए ना स्पाइस मार्केट में, वहाँ के लिए आप ये ब्यूटिफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेंटेंस कि बाजार में क्या स्पाइसेस की फर्स्ट क्लास स्मेल आ रही थी, बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल और फुल ऑफ लाइफ मार्केट थी, बस्लिंग विद लाइफ. ओके, नेक्स्ट इज इसका एकदम ऑपोजिट, ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल का मतलब होता है एकदम काम, एकदम सरीन, फ्री फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो. सो द ट्रैंक्विल गार्डन was a perfect spot for a quiet afternoon reading. So tranquil मतलब बिल्कुल calm. The hills offer a tranquil living experience. So next we move on to majestic. Majestic, having a grand, impressive or ग्रेट स्टेटली क्वालिटी. कोई चीज़ जिसमें एक रजवाड़ी इफेक्ट आए, क्वालिटी आए, उसके लिए ग्रैंड हो, जो बहुत बहुत इम्प्रेस करती हो, उसके लिए यू कैन से मेजेस्टिक. ओके, द मेजेस्टिक माउंटेन्स, जो बहुत ही आलिशान, बहुत ही बड़े हैं, है ना. द मेजेस्टिक माउंटेन्स टावर्ड ओवर द वैली एंड द पीक्स टचिंग द स्काई. द मेजेस्टिक माउंटेन्स टावर्ड ओवर द वैली, पहाड़ जो हैं वो वैली के ऊपर टावरिंग पोजीशन में थे एंड ऐसा लग रहा था कि जो उनकी पीक्स हैं दे आर टचिंग द स्काई. सो व्हाट अ लवली यूज ऑफ द एडजेक्टिव मेजेस्टिक. क्वाइट, quaint, charmingly old-fashioned, especially describing small towns and buildings. The village had a quaint charm, old-fashioned, vintage-inspired, है ना, old-fashioned, had a quaint charm with its cobbled streets and historic, old vintage cottages. Next, and the last word on the list, I know there are 10 words, usually there are 3 and 4, but depending on the topic, I'm going to give you homework as well. So these words would come for a rescue there. Next, lush. lush का मतलब होता है rich, full, dense. और lush हम generally use करते हैं कहीं की भी vegetation, यानी पेड़ पौधों को बताने के लिए, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हों जहाँ पर हम कहते हैं it's a lush green place. Or landscapes. The lush green forest stretched as far as the eye could see. So ये एक बड़ा अच्छा यूसेज था वर्ड का lush. So अब आते हैं प्रैक्टिस असाइनमेंट पर, यानी आपके होमवर्क पर. ये जो वोकैबुलरी हमने करी है और जो क्लास हमने आज स्पिन अराउंड करी है, अटेंड करी है, उसके अराउंड ही आज का असाइनमेंट मैंने क्रिएट किया है. क्या है? यू कैन चूज अ प्लेस यू लाइक. अपनी पसंद की कोई एक जगह ले लीजिए. इट कैन बी अ मार्केट और इट कैन बी अ गार्डन और इट कैन बी अ कैफे और अ रेस्टोरेंट, एनी प्लेस फॉर दैट मैटर. उसको डिस्क्राइब कीजिए डिस्क्रिप्टिव वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ, एडजेक्टिव्स के साथ, 2 या 3 पैराग्राफ्स में. और ट्राई करें यूज़ करना सेंसरी वर्ड्स को भी, सो दैट जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ें हमारे साथ लाइव सेशन में, तो वो जो पिक्चर आप क्रिएट करना चाहते हैं हमारी आंखों के आगे सजीव होकर के, इट शुड कम टू लाइफ with us, in our eyes. All right, next. Present a description scenario describing an old wise lecturer using at least 3 adjectives and 1 complex sentence. तो एक डिस्क्रिप्शन तैयार कीजिए एक बहुत ही ओल्ड और नॉलेजेबल लेक्चरर की इमेज क्रिएट कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए, जिसमें एटलीस्ट 3 to 4 एडजेक्टिव्स आपने डाले हों, जैसे हमने जो पीपल डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ करें, और अच्छे से एटलीस्ट 1 या 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज़ करने की कोशिश करिए. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर होम असाइनमेंट. So until we meet the next time, thank you for being with us. Don't forget to practice. Stick on to doing your assignments with full sincerity. यहाँ पर कोई भी ढीला ढाला एटीट्यूड मत रखिए. टुगेदर तभी हम मिलकर इंग्लिश यानी हमारी स्पोकन इंग्लिश को मास्टर कर सकेंगे, बेटर बना सकेंगे, elevate कर सकेंगे to the next level with sincerity and practice and effort. So until we meet next time, thank you very much and Jai Hind.